Hello students, how are you all? Today we'll start a new chapter, chapter 9. That's name is biomolecules. Okay, let's start. Each and every living organisms like microbes, plants and animals. Okay, each living organisms contain chemical substances for different kinds of chemical reactions. Okay, you should know that there is some total of chemical substances in living tissues. इट इज़ कॉल्ड सेलुलर पूल. ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को. तो पहले तो आपको ये समझना है बेटा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिम्स होते हैं, ओके, दे आर मेड अप ऑफ बाय सेल एंड सेल कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स. ठीक है, और जो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं दे मेक मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स मेक केमिकल compounds. Okay, so simply we can say that there are different kinds of chemical substances that occur in a living cell. Okay, and by the help of these chemical substances living organisms show metabolic processes. Okay, तो आप समझें, it is the sum total of biochemical substances that present in living tissue. It is called cellular pool. There are two phases in which different kinds of biochemical substances are present. One is aqueous phase and another is non-aqueous phase. Okay, in aqueous phase chemical substances dissolve in the water. Example, glucose, amino acid. In case of non-aqueous phase, okay, it also includes chemical substances, but we have to know that chemical substances do not dissolve in the water, and these chemical substances are part of structure of cell. Okay, example, phospholipid. ठीक है, तो दोबारा आपको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि each and every living organisms contain chemical substances. Okay, and these chemical substances are essential for different kinds of metabolic processes. Okay, and I have told you there is some total of biochemical substances that present in the living tissue. It is called cellular pool, and there are two
types of phases in which chemical substances occurs. One, aqueous phase, second non-aqueous phase. Okay, in case of aqueous phase, chemical substances that present in our living tissues, okay, they dissolve in the water. Example, glucose and amino acids. Okay, and in case of non-aqueous phase, okay, some chemical substances, okay, occurs and they do not dissolve in the water. Okay, they are part of the structure of cell. Okay, जैसे हम बात कर रहे हैं फॉस्फोलिपिड, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ सेल इट इज मेड अप ऑफ बाई फॉस्फोलिपिड्स. ठीक है, तो ये बेटा आपके केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं. ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा बायोमोलिक्यूल्स की. ठीक है, कि व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स. ओके, कार्बन कंपाउंड्स that we get from living tissue, okay, they are known as biomolecules. Carbon compound that we get from living tissue. They are called biomolecules. There are two types of biomolecules. Organic and inorganic. ओके, तो आप समझे बेटा बेसिकली कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं दे प्रेजेंट ऑन आवर लिविंग टिश्यूज. ओके, they are known as biomolecules. Okay, and I have told you there are two types of biomolecules. First, organic substances and inorganic substances. Okay, अब हम बात करेंगे बेटा कि molecules के बारे में. ठीक है, कि on the basis of the size there are two types of molecules. Okay, macromolecules and micromolecules. Okay, but for your kind information, biomolecules has 4 classes. Okay, and in these 4 classes some chemical substances occurs like carbohydrates, protein, nucleic acids and lipids. ठीक है, लेकिन जो साइज है उसके बेस पे there are 2 types of molecules. Okay, biomolecules, macromolecules and micromolecules. Okay, now we will differentiate between macromolecules and micromolecules. Okay, देखें macromolecules and another micromolecules. They have a high molecular weight. Okay, they have low molecular weight. It is one difference between macromolecules and micromolecules. Okay, कि जो लार्ज मोलिक्यूल्स होते हैं, बड़े मोलिक्यूल्स होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स. ओके, तो उनका जो एटम्स होता है बेटा इट हैज़ हाई मोलिकुलर वेट. ठीक है, और जो माइक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इनके जो एटम्स होते हैं दे हैव लो मोलिकुलर वेट. ओके, सेकंड डिफरेंस, लार्ज इन साइज. ओके, जो मैक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं बेटा दे आर लार्ज इन साइज. ओके, एंड माइक्रो मोलिक्यूल्स
small in size. Okay. Third difference, they have complex structure and they have simple structures. Okay. फिर जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं दे आर building blocks of मैक्रोमोलिक्यूल्स. ठीक है, कि जो फॉर्मेशन होती है मैक्रोमोलिक्यूल्स की, तो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से होते हैं? माइक्रोमोलिक्यूल्स. ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कई बार क्लासेस के अंदर पॉलीसैकेराइड्स का. ठीक है, पॉलीसैकेराइड टर्म इज मेड अप ऑफ बाय टू वर्ड्स, पॉली प्लस सैकेराइड. हियर पॉली मीन्स मैनी एंड सैकेराइड्स मीन्स शुगर यूनिट. तो यहाँ पर जो शुगर यूनिट से बेटा वो है ग्लूकोज. ठीक है, कि बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जुड़कर क्या बनाएंगे? पॉलीसैकेराइड्स को बनाते हैं. ठीक है, तो वहाँ पर जो ग्लूकोज है ना, ठीक है, वो कहलाएगा मोनोमर. ठीक है, कि मोनोमर एक सिंगल यूनिट. ठीक है, इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कौन सा हो गया यहाँ पे? पॉलीसैकेराइड्स. ठीक है, तो इसलिए बोला है कि जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स. ठीक है. अच्छा, फिर मैक्रो जो मॉलिक्यूल्स हैं दे हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, दे आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. ओके, तो हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ macromolecules from micromolecule. ठीक है, एग्जांपल आपको दूंगा मैं. ग्लूकोज, अमीनो एसिड. ओके, और यहाँ एग्जांपल देंगे बेटा आपको प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड का. ठीक है, एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ मैं कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं जैसे पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन्स, ये किससे बनते हैं? माइक्रोमोलिक्यूल से. ठीक है, अभी आपको एग्जांपल दिया है मैंने पॉलीसैकेराइड्स का, दैट इज फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ सिंपल शुगर यूनिट दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज. ओके, ऐसे ही बेटा जो प्रोटीन है, प्रोटीन इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स और कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस. ओके, इट इज फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ सिंपल यूनिट. ओके, दैट इज कॉल्ड अमीनो एसिड्स. कि बहुत सारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं दे लिंक विद ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ ए बॉन्ड दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड. ओके, एंड दे फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड चेन. ओके, जो प्रोटीन है बेटा क्या अपने आप में पॉलीपेप्टाइड चेन होती है. ठीक है, तो आप समझें कि जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं they have simple structure, they are small molecules. Okay, and they are used for the formation of complex substance. Clear? अब हम पढ़ेंगे बेटा कि how can we analyze organic substances and inorganic substances in our living tissues. ठीक है, लेकिन बता दूं आपको बेटा मैं कि there are some chemical elements, they are also present in non-living matters. ये भी आपको समझना है बेटा. ठीक है, कि कुछ केमिकल जो एलिमेंट्स ऐसे होते हैं दे अकर्स इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर्स. एग्जाम्पल दूंगा आपको मैं अर्थ क्रस्ट का. ठीक है, दैट इज आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, अर्थ क्रस्ट कंटेन सम केमिकल सब्सटेंस लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. ठीक है, तो ये एलिमेंट्स बेटा, ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं ये दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लिविंग के अंदर भी और नॉन लिविंग के अंदर भी. ठीक है, समझ गया आप इस चीज को. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन लिविंग टिश्यूज.
analysis of organic substances in our living tissues. We can easily analyze the presence of organic and inorganic substances in the living tissues. Okay, तो हम पहले जानेंगे बेटा कि हम कैसे लिविंग टिश्यूज से पता लगा सकते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के बारे में. ठीक है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक लिविंग टिश्यूज लाइक प्लांट लीव्स, ए पीस ऑफ वेजिटेबल, ए पीस ऑफ लिवर. ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं. ठीक है, हमें लिविंग टिश्यूज लेने हैं, जैसे हम प्लांट लीव्स ले रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक प्लांट लीव्स. ओके, आफ्टर दिस we will grind these plant leaves in the mortar by the help of pestle. ठीक है, कि जो प्लांट लीव्स नहीं बेटा अपन ने, ठीक है, उन प्लांट लीव्स को हम ग्राइंड करेंगे. ठीक है, किसके अंदर? मोटर के अंदर, बाय द हेल्प ऑफ पेस्टल. ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. ठीक है, ये दो चीज आप समझे. इट इज प्रोसीजर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. ओके, कि आपने जो लीव्स ली हैं, प्लांट लीव्स, ठीक है, उनको आपने ग्राइंड किया है किसके अंदर? मोटर के अंदर, बाय पेस्टल. ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड CL3COOH. ओके, अच्छा, उसके बाद क्या है बेटा कि जब हम इसको मतलब लीव्स को हम ग्राइंड करेंगे इन द पेस्टल, सॉरी इन द मोटर. ओके, देन वी obtain a thick slurry. क्या मिलेगा हमें? एक थिक स्लरी. ठीक है, अब उस थिक स्लरी को हम फिल्टर करेंगे बेटा. ठीक है, इनटू अनदर बीकर बाय द हेल्प ऑफ चीज क्लॉथ और कॉटन. ठीक है, कि इस थिक स्लरी को अब हम फिल्ट्रेट कर रहे हैं. थिक स्लरी filter through cheesecloth और कॉटन. ठीक है, अब यहाँ देखें. ठीक है, कि जैसे ही हम थिक स्लरी को फिल्टर करेंगे थ्रू चीज क्लॉथ और कॉटन, देन वी ऑब्टेन two fractions. Okay, acid soluble and acid insoluble. ठीक है, जैसे ही हमने रख दिया बेटा फनल. ठीक है, और इस फनल के थ्रू अब हम क्या कर रहे हैं बेटा? फिल्ट्रेट कर रहे हैं थिक स्लरी को. ठीक है, जैसे ये चीज क्लॉथ है या कॉटन है. ठीक है, अब हमें क्या मिल रहा है बेटा? वी ऑब्टेन टू फिल्ट्रेट. ठीक है, एक तो हमें मिला फिल्ट्रेट. ठीक है, इस फिल्ट्रेट को नाम दे दिया आपने एसिड सोल्यूबल. ओके, एक हमें मिला है बेटा रिटेंटेट. रिटेंटेट का मतलब होता है बचा हुआ. ठीक है, और ये रिटेंटेट क्या है? एसिड इनसोल्यूबल. ठीक है, अब आपको समझना है. ठीक है, कि जो एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन है उसके अंदर क्या है और जो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन हुआ है उसके अंदर क्या है. ठीक है, तो आप देखें कि जो बड़ा एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन जो मिला है हमें. ठीक है, इट कंटेन माइक्रो मॉलिक्यूल्स. ठीक है, क्या मिला बेटा इसके अंदर अपन को? माइक्रो मॉलिक्यूल्स. ओके, एंड यू नो वेरी वेल माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स,
okay, and these micromolecules are building blocks of macromolecules, okay। तो सिंपल सा है कि जो फ्रैक्शन, ठीक है, कौन सा, एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन, ठीक है, वो क्या कंटेन कर रहा है, माइक्रोमोलिक्यूल्स, ओके। एंड एसिड इनसोल्यूबल जो फ्रैक्शन है, इट कंटेन मैक्रोमोलिक्यूल्स, इसके पास क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, ओके। और आप एग्जांपल इजीली दे देंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स का, जैसे प्रोटीन है, ठीक है, फैट है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जैसे पॉलीसैकेराइड, दैट इज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो ये सब क्या है बेटा, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जो किसमें प्रेजेंट होते हैं, एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है, समझ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इन लिविंग टिश्यूज, ओके, कि हाउ कैन वी एनालाइज द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इन द लिविंग टिश्यूज, ओके। थैंक यू।